Hello, my dear students. Now, this is lecture number 19 of chapter matrices. In last lecture, we have studied both methods to solve the linear equations. In that, one is reduction method and another is inversion method. Now, we are going to continue some examples by using reduction method, which are the word problems. Word problem solve करेंगे. तो आपको थोड़ा अपडेटेड नोट्स भी भेज दिए हैं हमने, तो उस नोट्स के हिसाब से पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 3. अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो मैं इसको सिर्फ रीड करता हूँ, डिक्टेट करता हूँ और वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 20 का, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. The cost of 2 books and 6 notebooks is rupees 34, and the cost of 3 books and 4 notebooks is rupees 31. Using the matrices, find the cost of 1 book and 1 notebook. Now for that, we have to make the equations first. Now we'll consider here this is the question number 3. Let cost of 1 book be rupees X and cost of 1 notebook be rupees Y. Now, in first condition, it is given that cost of 2 books and 6 notebooks is rupees 34. It means it is 2x plus 6y is equal to 34. Either keep it as it is or divide it by 4 to make the equations. Divided by 2, we have it is x plus 3y is equal to 70. Call it as equation number 1. Also, यहाँ पे लिख सकते हैं according to first condition. According to first condition, it is 2x plus 6y is equal to 34. Now also according to the second condition, by second condition में क्या given है? The cost of 3 books and 4 notebooks is 31. Cost of 3 books and 4 notebooks is 31. Call it as equation second. Therefore, these equations in matrix form, these equations in the matrix form are, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, थोड़े आवाज को सहन कर लीजिए आज के दिन. These equations in matrix form are matrix 1 3 3 4 into this matrix xy is equal to this matrix 17 31. Now we will make this matrix we'll solve this equation by using reduction method. Make this element as 0, and for that use R2 changes by operation R2 minus 3 R1. We have it is matrix 1 3. Now 3 minus 3 it is 0. 4 minus 9 it is minus 5 into this matrix xy is equal to this matrix 17, and 31 minus 17 3s are 51. 31 minus 51 is minus 20 here. Now take the product. Therefore, first row into first column, that is uses x plus 3y, and second row into first column it is minus 5y
is equal to this matrix 17 minus 20. Compare both. Therefore we have x plus 3y is equal to 17. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज रहा, इसे भी हम 1 कह सकते हैं. एंड comparing this element with this element, it is minus 5y is equal to minus 20. Therefore we have y is equal to 4, and now put y is equal to 4, y is equal to 4 in equation first. Then we have x plus 3 into 4, that is 12, is equal to 17. Therefore we have x is equal to 5. Therefore we have cost of one book is rupees 5, and cost of one notebook is rupees 4. So this is about that word question. Now note it please. We'll continue for second question. Next question, question number 4. Now I am going to read question number 4. The cost of 4 dozen pencils, 3 dozen pens and 2 dozen erasers is rupees 60. The cost of 2 dozen pencils, 4 dozen pens and 6 dozen erasers is rupees 90. And the cost of 6 dozen pencils, 2 dozen pens and 3 dozen erasers is rupees 70. Find the cost of each atom per dozen using the matrices. तो यहाँ पे भी आपको पहले कंसिडर करनी पड़ेगी. लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स पर डजन be rupees X. The cost of pens per dozen be rupees Y, and the cost of erasers per dozen be rupees Z. Now from first condition, we have, now it is given the cost of 4 dozen pencils. 4 dozen pencils means it is 4x, plus 3 dozen pen means 3y, plus 2 dozen erasers is 2z is equal to 60. It is first. From second condition, the cost of 2 dozen pencils means 2x, plus 4 dozen pens means 4y, plus 6 dozen erasers, that is 6z, is equal to 90. We can divide it by 2. Therefore x plus 2y plus 3z is equal to 45. Call it as equation number 2. And from third condition, it is given that the cost of 6 dozen pencils means 6x, plus 2 dozen pens is 2y, plus 3 dozen erasers, that is 3z, is equal to 70. Call it as third. Now we have to write these 3 equations in the matrix form. Therefore these equations in the matrix form are matrix 4 3 2, this 1 2 3 and 6 2 3.
into this matrix x, y, z is equal to this matrix 60, 45 and 70. अब देखिए इसको हमें लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको, ये दोनों जीरो भी बन सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हमने R2 माइनस R3 लिया तो, या इसको वन करेंगे पहले, फिर इसको जीरो करेंगे। R1 interchange R2, we have it is matrix 1 2 3 4 3 2 and 6 2 3 into matrix x y z is equal to the matrix 45, 60 and 70. First of all, we will take the operation. R2 changes by operation. R2 minus 4R1 and R3 changes by operation. R3 minus 6R1. So it becomes 1 2 3 as it is. 4 minus 4 0. 3 minus 8 minus 5, 2 minus 12 minus 10, 6 minus 6 0, 2 minus 12 minus 10 and 3 minus 18 minus 15 into matrix x y z is equal to this matrix 45 as it is, 60 minus 180 minus 120 and 70 minus 270, that is minus 200. 45 into 6 करेंगे तो 270 आएगा, 70 minus 270 that is minus 200. अब इसको जीरो बनाना है तो R2 changes by operation, R2 minus R3 changes by operation, R3 minus 2R2, so it becomes 1 2 3, 0 minus 5 minus 10, ये आएगा 0 0, अब minus 15 and plus 20, that is 5 into matrix x y z is equal to the matrix this 45 as it is minus 120 as it is, minus 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 40, 240 और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 40, minus 200 plus 240, it is nothing but 40. तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, आप मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम that is x plus 2y plus 3z, second row into first column that is minus 5y minus 10z, third row into third column that is 5z is equal to this matrix 45 minus 120 or 40. Compare both sides, therefore x plus 2y plus 3z is equal to 45, call it as first, minus 5y minus 10z is equal to minus 120, call it as second, and 5z is equal to 40. 5z
is equal to 40. Therefore we have z is equal to 8. z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखी, पुट z is equal to 8 in second equation. या तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 3 इक्वेशन दिए तो यहाँ पे हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलो, तो इसको रखो इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये क्या आएगा, z इज इक्वल टू 8 इसमें रख दो, तो ये आएगा -5y माइनस 80 इज इक्वल टू -120। तो देयरफॉर -5y इज इक्वल टू आएगा -40। देयरफॉर y इज इक्वल टू आएगा 8। y की वैल्यू भी 8 आएगी। एंड लास्टली पुट y is equal to 8 and z is equal to 8 in equation 4th, then we'll get x plus 2 8s are 16 plus 3 8s are 24 is equal to 45. तो x is equal to आएगा 45 minus 40, that x is equal to आएगा 5. x is equal to 5 यानी हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 5 है x की, तो इसमें रख के देखो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या। वी कैन पुट दीज वैल्यूज ऑफ x, y and z in this equation to check whether the answers are correct or not. 4 5s are 20, 20 plus 18 plus 8 वैल्यू अगर रखते हैं हम यहाँ पे, तो ये 20 आएगा, ये आएगा 24 और ये आएगा 12, 8 2 16, तो 16 plus 24 40 plus 20 that is nothing but 60। इसमें रख के देखो, ये इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू आएगी 16 और इसकी 24, तो that is nothing but 45, और इसमें भी आप रख के देख सकते हैं, that is nothing but 70। ठीक है, तो this is nothing but a solution, means x is, lastly we can write in words, the cost of pencils per dozen is ₹5 and cost of pens and erasers per dozen is ₹8। ठीक है, तो this is the solution of question number 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Now look at for question number 5. If 3 number added, their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the first sum of the first and third number, we get 8. If 3 times the first number is added to the sum of second and third, we get 4. Find numbers using the matrices. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इक्वेशन बनाने आना। तो हम let that numbers be, let that 3 numbers be x, y, z. As we'll write the condition here now. First of all, given addition of numbers, sum of the numbers is 2. Sum of numbers is 2. It means we can say that x plus y plus z is equal to 2. Call it as equation number 1. एक पहली कंडीशन ही है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, as 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third, we get 8.
It means we have x plus y is the sum of first, x plus z is sum of first and third. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर इज y यानी 2y इज इक्वल टू 8. तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8. इसको कहेंगे हम सेकेंड. एंड एज थर्ड कंडीशन इज गिवन 3 times the first number, 3 times the first number added to sum of second and third, sum of second and third we get 4. It means we have 3x plus y plus z is equal to 4. 3 times the first number यानी 3x is added to sum of second and third. second and third की sum में ऐड किए तो हमें 4 मिलता है. ठीक है. जो स्टेटमेंट है उस पे से हमने इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बताया. अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो और बाकी प्रोसीजर सेम है. Therefore these equations in matrix form ये आएगा मैट्रिक्स 1 1 1 1 minus 2 1 and 3 1 1. Into a matrix XYZ is equal to this matrix 2 8 4 2 8 4. तो चलो इसको रिड्यूस करते हैं हम. ऑपरेशन लेंगे. R1 चेंजेस, R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस बाय ऑपरेशन R3 माइनस 3R1. तो क्या आएगा देखिए. ये फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा 1 1 1. R2 माइनस R1 1 माइनस 1 ये 0 आएगा. माइनस 2 माइनस 1 ये माइनस 3 आएगा. 1 माइनस 1 ये 0 होगा. फिर 3 माइनस 3 ये 0 होगा. 1 माइनस 3 ये माइनस 2 होगा और 1 माइनस 3 ये माइनस 2 होगा. Matrix close. Into this matrix x y z is equal to the matrix. अब देखिए ये क्या होगा. This is 2. R2 minus R1 means 8 minus 2 it is 6. और R3 minus 3R1 इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6. 4 माइनस 6 इज माइनस 2. समझ में आ रहा है. तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. वैसे यहां पे 0 चाहिए हमें, तो हम इन दोनों को एक ऑपरेशन लेते हैं इसको 0 बनाने के लिए. वैसे भी हमें यहीं पर सॉल्व किया तो भी चलता है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला इक्वेशन 3 वेरिएबल में आएगा. दूसरा इक्वेशन जो है 2 0 आने के कारण दूसरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में y में आएगा और तीसरा y और z में आएगा. तो डायरेक्ट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो भी इट इज सफिशिएंट टू रिड्यूस नाउ, क्योंकि फाइनल एम है टू गेट वन इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड वन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ठीक है. तो हमें एक एक की वैल्यू मिलके फिर बाद में बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया तो भी चलेगा यहाँ पे. देयरफॉर वी हैव फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम इज x प्लस वाई प्लस z. दूसरा आएगा माइनस 3y और ये आएगा माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2
6 -2। दोनों साइड में कंपेयर कीजिए। देयरफॉर वी हैव x + y + z = 2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट ही है यहां पर। दूसरा इक्वेशन आएगा -3y = 6। देयरफॉर वी हैव y = -2। एंड तीसरा इक्वेशन आएगा, इसको लिखेंगे हम नंबर 4। तीसरा इक्वेशन है -2y - 2z = -2, बट y = -2, तो y की वैल्यू -2 यहां पे रखेंगे तो 4 - 2z = -2, -2z = -6, तो z आएगा 3। Put the value of z and y in equation first. Put y = -2 and z = 3. Z = 3 in equation first. तो ये आएगा x - 2 + 3 = 2. Therefore x आएगा 2 - 1. Therefore x = 1. तो आपको वैल्यूज मिले x = 1, y = -2 and z = 3. Therefore that three numbers are 1 - 2 3. That is your answer, 1 - 2 3. प्रोसीजर याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ इक्वेशंस में उनको कन्वर्ट करने आना चाहिए। एक बार इक्वेशंस में हमने उसको कन्वर्ट किया, फिर हम यूजिंग रिडक्शन मेथड वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। ओके, तो चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसको अच्छे से देख ले, ठीक है, और वो आप होमवर्क में सॉल्व करो। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 2b। तो देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2b में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A is equal to this matrix 1 2 3 4 and adjoint of A is equal to this matrix 4A minus 3B, then the values of A and B are, small a and b के वैल्यूज निकालने हैं। जैसे हम इस पे से इसका अगर एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो हमने जैसे शॉर्टकट्स में डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, हियर वी हैव टू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, यानी यहां पे 4 है, यहां पे 1 आएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट से इनके साइन चेंज करो, यहां पे आएगा -2 और -3। अब इसके साथ इसको जब कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन आएगा a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 1, मींस ऑप्शन a इज करेक्ट ऑप्शन। a इज -2 एंड b इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 0 1 1 0। अब इनवर्स निकालना है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इनवर्स निकालते समय क्या करेंगे हम, पहले इसको नाम देंगे a। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 0 - 1 इज -1 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और हमें फॉर्मूला पता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट में क्या होगा, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो सेम ही है, तो 0 0, और चेंज द साइंस, इनके साइन चेंज, तो -1 -1, लेकिन बाहर -1 आने की वजह से a इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा फिर से 0 1 1 0, यानी
मैट्रिक्स ए इटसेल्फ इज द इनवर्स। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0 1 1 0 मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन, given है if A is equal to matrix 1 2 2 1 and A into adjoint of A is equal to K into I, A into adjoint of A is equal to K into I, then value of K is, तो क्या आपको पता है प्रॉपर्टी A into adjoint of A क्या होता है? is always equal to determinant of A into I। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें डेफिनेटली मिलेगा कि K is nothing but equal to determinant of A, and determinant of A अगर निकालना है it is determinant 1 2 2 1, therefore K is equal to 1 minus 4, K की वैल्यू आएगी -3, K इज इक्वल टू क्या आएगा -3। तो देखते हैं हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। K इज इक्वल टू -3 मीन्स डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी। नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -4 3 1 then the adjoint of matrix A is, adjoint of A निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2 का इंटरचेंज द डायगोनल्स, यानी यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, और चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल्स, यानी ये आएगा 4, ये आएगा -3। तो 1 4 -3 2, 1 4 -3 2, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये याद रखना है सभी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 एंड गिवन दैट A into adjoint of A is equal to K into I, then value of K is, so we know that we can write A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो K यानी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2, तो K की वैल्यू होगी -2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, if A is a matrix, if A is a matrix lambda 1 -1 minus lambda, and given that A inverse does not exist, if lambda is equal to, अब मुझे बताइए A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हम कब बोलते हैं? जब मैट्रिक्स A क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा प्लस और -1। लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस और -1, तो आंसर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, these are very easy MCQs। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है if A is equal to matrix cos alpha sin alpha cos alpha
just I want to check this question once. 1 minute. Now for this question 7 I will discuss in next lecture. Something is wrong there in that question. I want to check. Now presently I don't have textbook here, so I will correct it in next lecture. Now question number 8. F of alpha is equal to matrix cos alpha minus sin alpha 0 sin alpha cos alpha 0 0 0 1. तो हमें फाइंड आउट करना है therefore f of alpha raised to inverse is equal to. Now we have discussed this shortcut also. Once again I will repeat it. अगर f अल्फा इनवर्स है तो इसको हम डायरेक्टली f ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में इसका इनवर्स और इसका ट्रांसपोज सेम होता है, यानी इसको माइनस यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हमने अगर एफ ऑफ अल्फा ऐसा है तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एफ अल्फा का स्क्वायर किया है तो अगर एफ अल्फा होल स्क्वायर ऐसे आता था तो हमें लिखना पड़ता था एफ ऑफ 2 अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर ऐसा करते हैं हम तो ये होता है एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो these are the shortcuts for this matrix. तो ये आपका आंसर होगा f of minus alpha, यानी आंसर A is correct option. Question number 9. Inverse of matrix A. Matrix A is given 0 1 0 1 0 0 0 0 1. इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला है A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा A इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसमें दो तीन चीजें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने यहां पे देखते हैं कि ये पूरे एलिमेंट्स सिर्फ 0 0 1 1 0 0, तो इसको अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो A जो मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इसको अगर यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक चेंज करना है, सिर्फ R1 इंटरचेंज R2 करना है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। तो आपके सामने आपका आंसर रहेगा 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1. ये आपका इनवर्स होगा, दैट इज योर मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए इनवर्स और ए सेम होगा, ए इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू ए। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मींस बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आवाज मेरा कम है, एडजस्ट कर लीजिए। Now next question number 10. The inverse of symmetric matrix is, ये knowledge point है, inverse of symmetric matrix is always a symmetric matrix. Answer A is correct. Then question number 11 में है, for 2 by 2 matrix A into adjoint of A
इज इक्वल टू मैट्रिक्स 10 0 0 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हमें पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इट इज नथिंग बट 10 इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1 means we can say that determinant of a into I is equal to 10i। तो determinant of a की वैल्यू आएगी 10। This is your answer. Option B is correct. Now number 12, इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। If a inverse is equal to, it is -1/2 into this matrix 1 minus 4 minus 1 2, तो मैट्रिक्स ए निकालना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा देखिए, इसको इंटरचेंज कीजिए, बिकॉज ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स एंड चेंज द साइंस, इट इज 4 and 1। और अब इसका इनवर्स भी निकाल के देख सकते हैं हम। 2 minus 4 is the -2 is the determinant A, means 1 upon -2 into interchange the diagonals and change the signs, यानी 2 4 1 1, ये आपका मैट्रिक्स A होगा। समझ में आया कि मैंने क्या किया। A इनवर्स से अगर A निकालना है तो भी वही प्रोसेस, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद है A इनवर्स का इनवर्स अगर निकाला तो दैट इज मैट्रिक्स A। तो वही प्रोसीजर होगी, जो A से A इनवर्स निकालते हैं वैसे ही A इनवर्स से A निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब MCQs अपने खत्म हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस हमने कुछ सॉल्व भी किए हुए हैं बाय इन्वर्जन मेथड एंड बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक कुछ जो डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है जो थोड़े अलग टाइप के हैं, उतने वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके लिए इससे ले लूँगा। ठीक है, बाकी एक या 2 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।